تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ میں آپ سے بات کروں، کچھ آپ مجھ سے بات کریں. تو یہاں پہ کوئی کلاس نہیں لگے گی کہ میں کویشچن کر رہی ہوں آپ مجھے آنسر دے رہے ہیں، بلکہ آپ مجھ سے کویشچن کیجیے گا، میں آنسر دوں گی. میں 2-4 باتیں ایسی پوچھنا چاہتی ہوں جنرلی جسٹ ٹو نو، آئیڈیا لینے کے لیے، کہ آپ میں سے کسی نے کبھی سائیکو تھراپی لی ہے، کاؤنسلنگ لی ہے، کبھی سوچا ہے، یا آس پاس کسی نے کاؤنسلنگ سیشنز لیے ہوں؟ جلانی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بھی بتائیے گا. ہارٹ کی سرجری اگر میں آپ کو سکھا دوں کرنا، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں یہ اسٹیپ ہے، ایسے لٹائیں بستر پہ بندے کو، ٹھیک ہے، ایسے کاٹیں، ایسے والس کھولیں اور پھر سوئی دھاگے سے ٹانگے لگا لیں، آپ کریں گے؟ اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی گیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے. تو وہ کہنے لگا یار یہ جو آپ کو بیماری ہے نا، یہ تو میں نے چوائس میں چھوڑ دی. آپ ایسے کرو، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، اس سے آپ کو بخار آئے گا، اس کا علاج ہو جاتا ہے. جب آپ سب کو مل گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو انڈیا میں ایک پرسن نے یوٹیوب سے سرجری سیکھی اور خود اپنی جو ہے وہ سرجری کر رہا جی. ہے. تو یہ یہاں پر بات، ہم تو بہت اچھے ایک کیجول سے ماحول میں بات کر لیں، لیکن یقین کیجیے اس کو بہت سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. میں اس کو اس میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں کہ جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ یا کاؤنسلرس کی یا سائیکیاٹرسٹ کی، تو اس میں ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر دوستوں سے ملو، باتیں کرو گے، ہنسو گے، کھیلو گے، ٹھیک ہو جاؤ گے. مطلب یہ والی جو چیز ہے یہ ہمیں ایک اسٹگما کے طور پہ مینٹل ہیلتھ کے لیے سوسائٹی میں دی گئی ہے، کیونکہ ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا. وہ بڑا فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ذرا ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے، سامنے سے کچھ بتائیں گے مشورے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. ہڈی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے، دل ٹوٹ جائے وہ کسی کو نہیں بتا، بڑی شرم کی بات ہے. ہم تو مر جائیں گے، ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، ہم اسٹریس میں ہیں. اس چیز کو نا بہت فیل کرنے کی ضرورت ہے. ویسٹ میں لوگ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دے چکے ہیں، اور میں نے ابھی بھی سنا تھا کہ اگر آپ فزیکلی ٹھیک ہیں تو مینٹلی تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پروون فیکٹ ہے کہ اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں آپ فزیکلی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہی ہوں، ریسرچز بتاتی ہیں یہ باتیں. ایک بک ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، دا باڈی کیپس دا اسکور. جو باتیں ہم کرتے ہیں، جیسی سوچ ہم رکھتے ہیں، جیسے ایکسپیرینسز ہمارے ہوتے ہیں، وہ چیز ہماری باڈی پہ آتی ہے. میڈیکل میں ہی بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں جس سے پروو ہو گیا ہے کہ اسٹریس، پرسسٹنٹ اسٹریس جو ہوتا ہے، جو لوگوں نے زندگی بھر یا سال ہر سال تک اسٹریس لیا ہوتا ہے بہت زیادہ، جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کرونک ڈپریشن جن کو ہوتا ہے، ان کو اسٹروک، ہارٹ اٹیک، یہ بیماریاں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آٹو امیون ڈیزیزز جو کہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں. آٹو امیون ڈیزیزز میں ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہے، جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے بیماریوں سے، وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر کسی ملک کی فوج اپنے ملک کے خلاف ہو جائے تو اس ملک کا تو دا پوائنٹ ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ آٹو امیون ڈیزیزز کا بھی ایک بڑا جو ریزن ہے وہ اسٹریس ہے. اسٹریس یا پھر مینٹل ہیلتھ کی بات اگر میں کروں تو یہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے آج کل سنا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو ADHD ہے، وہ زیادہ پڑھ نہیں سکتا، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، وہ شاید آپ نے لفظ سنا ہو، ٹھیک ہے نا. یا کئی بچے عموماً آج کل وہ ایک ٹائم پہ، بچے کیا بڑوں میں بھی یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ زیادہ دیر تک وہ کام نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کام اسی میں شامل کرتے ہیں یا پھر جمپ کر جاتے ہیں. تو اکثر اوقات یہ جو ایک سمپٹم ہے ADHD کا ہے. اب ADHD کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کی ووم میں ہوتا ہے، کوکھ میں ہوتا ہے، اس ٹائم پہ نہ صرف ماں، اگر باپ بھی، دونوں پیرنٹس اسٹریسڈ ہیں تو بچے کو ADHD ہوگا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں یہ بات. سو مینٹل ہیلتھ از ہیلتھ. فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں پیرلل چلتی ہیں. لیکن یہاں پہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی فٹنس اور یہ سب چیزیں بہت اچھی بات ہے، میں خود بھی چاہتی ہوں میرا 10 کلو وزن کم ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں ہم بڑے کمال کے لگیں، ہماری چمڑیاں وغیرہ کی کھچ جائیں، بہت اچھی بات ہے. واٹ اباؤٹ ان سائڈ ورلڈ؟ اندر کی دنیا کا کیا ہوگا؟
देखिए ना, लोग तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, फैशन कितना ज़्यादा दुनिया में आ गया है, लोग कपड़े इतने इतने अच्छे पहनते हैं, ख़वातीन मेकअप करती हैं, मर्द हजरात जो हैं वो सूट बूट इतने कमाल के पहने होते हैं। तो इतनी केओटिक वर्ल्ड क्यों है फिर? बेसकूनी कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है, अंदर की दुनिया से आ रही है, और वो बाहर इंसान को सही से रहने नहीं दे रही है। आप में से कुछ लोग या जितने भी लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि सही कह रही हूँ मैं या नहीं भी कह रही? अगर किसी को एतराज़ हो तो प्लीज़ मुझसे बात करें। सब इस बात को मानते हैं, मतलब मेंटल हेल्थ को सब मानते हैं कि मेंटल हेल्थ है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत काम कर रहे हैं। आपने मेंटल हेल्थ का हाथ यहाँ पे रखा आपने कि मेंटल हेल्थ जो है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आप एक्टिवली बैठे हुए हैं। हाँ, अब यहाँ से एक और बात खुलेगी, बिल्कुल, कि मेंटल हेल्थ में मैंने यहाँ क्यों हाथ रखा। व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ पता है क्या है? माइंड, बॉडी एंड हार्ट कनेक्शन। वो कनेक्शन है, कनेक्ट करती है सबको। ब्रेन देखिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल जो हकीकत है। नर्वस सिस्टम की बात होती है कि जी नर्वस सिस्टम पे ही तो इंसान चल रहा होता है, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है? नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, या जो रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी का गूदा, उसको भी लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और सारी बॉडी की नर्व्स है, ठीक है? अब जो बॉडी की नर्व्स है, जो हमें ब्लड सप्लाई कर रही है, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो ब्रेन से आ रही हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। और ब्रेन ही वो पार्ट है बॉडी का जो पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कोई भी एक्शन लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने बैठने, चलने फिरने, रोने हंसने, लिस्ट जो कुछ भी आप करते हैं, वो ब्रेन से सिग्नल आता है, तो बॉडी उसको फॉलो करती है। जैसे कोई भी हुक्म आता है तो मुलाजिम उसको मानता है कि ये काम मैंने करना है। अब यहाँ पे कितनी अहम बात है ये सोचने की और समझने की, उस पर गौर करने की कि हमें ब्रेन हेल्थ पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ये सिंपल सी बात को भी समझ जाएं जो नर्वस सिस्टम की है, कि पूरी बॉडी को जो कमांड मिल रही है वो ब्रेन से मिल रही है। जैसे कि कंट्रोल रूम होता है किसी भी जगह का, अगर फर्ज करें कि कंट्रोल रूम में आग लग जाए, क्या होगा? पूरी बॉडी में दो चीज़ें होंगी, या तो सिग्नल्स बहुत वीक आएंगे या सिग्नल्स आएंगे ही नहीं। इमेजिन कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं चाहूँगी कि एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कुछ लोगों से हम मिलते हैं, ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं, ऑफिस से आए या कुछ भी, लेकिन उनसे मिलकर एकदम फ्रेश फील करते हैं, यार मतलब सारी थकन उतर गई तुमसे मिलकर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम पूरी रात भी सोए, ज़बरदस्त फ्रेश उठे हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठे ना तो उलझन सी महसूस होगी। आप बीमार नहीं होते इनसे मिलकर, लेकिन आपको होगा कि यार यूं इंसान लोग कर रहे होते हैं समटाइम्स, या फिर कहते हैं कि कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है बॉडी में। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया आपने या एक्सपीरियंस किया है? होता है। ये क्या है, कभी सोचने की कोशिश की है? ब्रेन की वेव से जो ट्रेवल, ब्रेन की वेव से ट्रेवल होती है। अच्छा, थैंक यू। और कुछ? ये तो हमने सुना है कि उस पर्सन की जो एनर्जी है, ऑरा होती है, वो भी आपके ऊपर इम्पेक्ट करती है। एग्जैक्टली, द एनर्जी, बिल्कुल। अच्छा, वो एनर्जी होती है हर इंसान की जो वो कैरी करता है, और जब हम किसी भी इंसान से मिलते हैं वो एनर्जी उस तक जाती है। जैसे मुझसे पहले 2-3 स्पीकर्स बात करके गए, उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी, मेरी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट होने की बात हो रही है। आपको बात करते हुए फील अलग, आपको सुनते हुए अलग फील हो रहा होगा, उनको सुनते हुए, मुझे सुनते हुए, या इसके बाद भी अगर आप कहीं जाएंगे आपको डिफरेंस फील होगा। ये एनर्जी है। अब ये चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, तो इसको मैं फिजिकल हेल्थ तो नहीं कहूँगी ना, ठीक है? एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों का ब्रेन के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। एक प्लस में लाइक माइंडेड पीपल, सॉरी, लाइक माइंडेड पीपल चाहिए। जी बिल्कुल, लाइक माइंडेड इट्स एन एनर्जी आल्सो। जी, कुछ कह रहे थे इमोशनल। जी। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो ये सोचते हो, कभी सोचा हो कि यार ये मतलब दुनिया में साइकाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ पे, माइंड पे, माइंड साइंसेस पे इतना काम हो रहा है दुनिया में, हमारे यहाँ कम हो रहा है लेकिन शायद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी कोई क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड, नफ्सियात से, दिमाग से रिलेटेड आया है आपके जहन में?
आप कर सकते हैं। 60s या 70s में तो इस तरीके से डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें हमने नहीं सुना करते थे जी। कि इस तरह की होती हैं। आजकल हर बच्चा जो है वो ये कहता है कि जी मुझे डिप्रेशन है, हर बच्चा ये कहता है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, कुछ जाते भी हैं, कुछ पे फर्क भी होता होगा, लेकिन काफ़ी सारे तो बस जाते हैं और वापस आते हैं। ठीक है। तो ये पहले क्यों नहीं होता था और अब क्यों होना शुरू हो गया? क्या ये जो सोशल मीडिया है या वर्क प्रेशर है या जो आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें हैं ये? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर। अच्छा, इसका आंसर ये है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटलाइजेशन ने जहाँ बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं वहाँ नुकसान भी दिए हैं। आपके ज़माने में या मेरे ज़माने में या कह लें जो मतलब हमारे जनरेशन के लोग हैं, हमारे पास क्या होता था मुझे पता है, बहुत कम चीज़ें होती थी, ऑप्शंस ही कम होते थे। बेहतरीन दौर था वैसे, वो बहुत अच्छा सुनहरा दौर था, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास कम होते थे। फैमिली होती थी, चंद एक मोहल्ले के लोग होते थे, दोस्त वगैरह होते थे। 8 बजे PTV पे एक पूरे 1 घंटे का ड्रामा देखते थे, हम 9 बजे खबरनामे के साथ खाना खा लेते थे और उसके बाद वही एक दूसरे को बहन भाइयों को तंग करना और थोड़ी देर के बाद सो जाना, यही होता था। अब आप देखिए, अगर हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सोशल मीडिया जो डिजिटाइजेशन है, वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन पे इतना सा फ़ोन है, उसके ऊपर पूरी दुनिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया, आपको पता है कि यहाँ पे मुझे कोई भी न्यूज़ मिल जाएगी, कोई भी मूवी देख सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं, कोई पॉडकास्ट देख सकते हैं, कोई क्रिकेट मैच आप देख सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया एक इतने से डिवाइस में आपके पास आ गई है। अब जो न्यूरोलॉजिकली मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है इंसान के साथ। जब आपके मोबाइल देख रहे होते हैं रात में, अक्सर लोग रील्स वगैरह देखते हैं ना, ठीक है, तो रील्स देखते हैं, एक रील देखी कहीं पे भी, इंस्टा पे, टिकटॉक या कहीं पे भी आपने देखी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने ऊपर कर दिया, ठीक है, फिर दूसरी कोई रील आई जो आपको पसंद आई, इसको थोड़ा ना रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, वो अच्छी लगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ अच्छी लग गई, उसके बाद आप मोबाइल बंद नहीं करते, आपकी ख्वाहिश होती है मैं आगे भी रील्स देखूँ, इससे भी अच्छी कोई ना कोई मिल जाएगी। वो आप अपने आप से एक्टिवली कहते नहीं हैं, लेकिन ब्रेन इस तरह से वर्क करता है। फिर आप और अच्छी की तलाश में देखते हैं, फिर वहाँ मज़ा आता है कि अपने इंटरेस्ट की, हंसी की या कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप देखते हैं, ठीक है। यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग। अब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, और ये न्यूरोलॉजिकली ट्रू है। ब्रेन इसको प्रोसेस नहीं कर पाता, हालांकि इन्फॉर्मेशन उतनी आनी चाहिए जिसको ब्रेन प्रोसेस करे। जब प्रोसेस करेगा ब्रेन, जब तो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगी वो चीज़, ब्रेन उसको प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, जो कि आई नो डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जाहिर है कि हम एक डिफ़िकल्ट टाइम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, तो थोड़ी बहुत तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली मोबाइल का यूज़, स्क्रीन टाइम बहुत कम करने की ज़रूरत है। आप इंफॉर्मेशन वो लीजिए जो आपके मुताबिक हो, इधर से भी उधर से भी, हर जगह से कोई ना कोई लोग इंफॉर्मेशन पकड़ते ही जा रहे हैं, और हर दूसरा इंसान आकर अपनी वीडियो बनाकर जो है फिलॉसफी की बात कर रहा है। साइकोलॉजी की बात करना तो बहुत आसान है, मतलब वो तो कोई भी 2 चीज़ें कहीं से पढ़ के वो बात करना शुरू हो जाएगा। उनका बैकग्राउंड पूछे, पता नहीं कोई इंजीनियर होगा जो साइकोलॉजी की बात कर रहा है। आपने कोई नहीं, ये भी करते हैं, ये इंजीनियर है और ये भी करते हैं। हाँ, मैंने देख ली थी आपकी कोनी, हालांकि मैं उनको देख रही थी, तो मैंने देख ली थी क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई तो हमारे पास नगीना होगा यहाँ पर। हमने यूं बैठना होगा। जी प्लीज। असल में ये सुना गया, देखा गया है, एक्सपीरियंस भी है जी। मोबाइल का ये यूट्यूब है, स्पेशली वो माइंड रीडिंग का काम कर रहा है आजकल। जो हम सोच रहे होते हैं ना, वही स्पेसिफिकली वीडियोस हमारे मतलब कि हमारे जहनी सोच के मुताबिक आ जाती है। जी। ये भी हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस किया है काफ़ी लोगों ने। जी बिल्कुल, और ये ट्रू है। ये तो हमारे सामने हकीकत है ना। आप देखिए कि इवन जो हम चले सोचने से एक स्टेप आगे जाते हैं कि जो हम बात कर रहे होते हैं, 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन पास रखा हुआ है, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं कोई गाड़ी लेने के बारे में ना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने मोबाइल खोला, वहाँ पे सबसे पहले मुझे पार्क व्हील्स का पेज नज़र आ गया। आई वॉज सो अस्टोनिश्ड कि मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, लेकिन ये है। अब यहाँ से हमें पिकअप करने की ज़रूरत है कि आप इमेजिन कीजिए कि जो चीज़ हमें, देखिए जो चीज़ मुफ्त में मज़ा देती है ना,
اس کے ریپرکشنز ہمیں بھگتنے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے. ہمیں سوشل میڈیا سے مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سب چیزیں. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے کہ سوشل میڈیا کوئی ہماری فلاح کے لیے نہیں لانچ کیا گیا تھا، کوئی ویلفیئر کا پروجیکٹ نہیں ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا تو ایک بزنس ہے جو وہ رن کر رہے ہیں. ہاں ہم اپنے آپ کو پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں. اگین آپ کی بات بھی اور آپ کی بات بھی دونوں کو آپ کی ملا کر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی نو کنٹرول کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے ان ٹائمس میں، لیکن اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو انہی کیوٹک مائنڈس کے ساتھ ہم گھومتے رہیں گے. جو ہم سن رہے ہیں اس کو پروسیس نہیں کر پائیں گے اور کچھ لرن بھی نہیں کر پائیں گے. اب یہ دیکھ لیجیے ایگزامپل سوشل میڈیا پہ یا ہماری فیملیز میں بھی دیکھ لیجیے یا دوستوں میں، ہر بندہ ہر چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ اتنا کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ حیران ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں یا ہمیں ابہام ہو کہ ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، پیپل آر سو کانفیڈنٹ بیکاز انہوں نے کسی ریل میں کچھ دیکھ لیا تھا. اب ریل میں جو انسان آپ کو دکھا رہا ہے، آپ نے اس سے، میں کہتی ہوں، میں کامنٹس دیکھتی ہوں، میں ان چیزوں کو آبزرو کرنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوتا کہ سر یا میڈم آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کہاں کام کرتے ہیں، کس ادارے کے آپ ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کسی بھی اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں، آپ اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. ابھی آپ مجھ سے میڈیکل کی بات کریں گے، مجھے نالج ضرور ہے، بہت ساری چیزیں پتہ ہے کیونکہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہی میں کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میں اس کے اوپر آپ کو جواب جب دوں گی تو میں اس طرح دوں گی کہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ایسا، آئی ایم ناٹ شیور. تو وہ رویے ہمارے اتنے پختہ ہو گئے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. بہت پرانی بات ہو رہی ہے، پلیز سر. اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے بات یہ سمجھ کی کہ ہم اپنی مینٹل ایشو یا سائیکولوجیکل ایشو یا دل کا حال شیئر کیوں نہیں کرتے. جی سر، دل کا حال شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ معاشرے سے ڈرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میری اتنی سائیکولوجیکل پرابلم بچپن سے اب تک میرے دوستوں نے کی، ہر غلطی پہ انہوں نے جھٹکا، ہر اس پہ تو انہوں نے سکھایا، تو میری تو وہی مینٹرس تھی. مگر اس زمانے میں اسپتال جانا یا کسی کے پاس سائیکیٹرسٹ کو دکھانا یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ آدھے ہو گئے. ٹیبو تھا. جی سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. وہ اب تک چل رہا ہے. یہ ٹیبو ہے ایک معاشرے کے اندر. اچھا، ابھی بھی بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں مجھے تو نہیں، میرے چھوٹے بھائی کو یہ مسئلہ ہے تو تم کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ بتا دو. ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی یہ بات ایڈمٹ کرنے میں تیار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ان کا اپنا ہے. اور جب میں ان کو ٹائم دے کے دوں گا تو وہ خود جائیں گے، بھائی نہیں جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں ایک آرمی چوٹی کا کھیل چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ چل رہا ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم لوگ بولنے لگے، کم از کم لوگ سامنے آنے لگے. جی. اس میں سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، سائنٹسٹوں کا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کوالیفکیشن لکھی. اس سے پہلے یہی سارے کام اسکول ہیڈ ماسٹر، پوسٹ آفس کے لوگ، پیش امام مسجد کے اور نائے کرام، معاشرے میں یہی کام وہ سب لوگ کر رہے. اور ان کے پاس کوئی بھی جاتا تھا وہ خود بلاتا تھا کہ بھائی تمہارے گھر والے پریشان ہیں، تمہیں کیا ایشو. اس ٹیبو سے نکلنے کے لیے مطلب آپ نے سپورٹ کرنے کے اندر سے باہر بالکل. اور بریو بنے. مائی پوائنٹ. جی بالکل. تھینک یو سو مچ فار ایڈنگ دس مچ ویلیو ان ٹو دا سیشن. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور یہ حقیقت ہے. اچھی بات سے زیادہ حقیقت ہے، یہ سچی بات ہے. اب یہاں پہ یہی چیز ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ جو پوائنٹ ہے اس کو لے کر تھوڑا چلتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے. کبھی سوچا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہمارے اندر؟ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے؟ جی پلیز. میں جسٹ ان کی بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ ہمیں بچپن سے یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ اجوائن دانا کھانے سے کیا ہوگا، نار سے کیا ہوگا، جو بھی ٹوٹکے شوٹکے سے ہوگا. کبھی بھی بچپن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مائنڈ میں اگر سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا آپ سائیکولوجیکل پرابلم میں آتے ہیں تو کیا کریں گے. یقیناً ایک بتایا کہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمازیں پڑھنے سے کیا. ٹیبو کی جو انہوں نے بات کی میری امی کو ہوا تو میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ کہتی میں پاگل ہو گئی تھی. سو ایکسٹریم آپ اپنے آپ کو ایک سوسائٹی میں ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ میں امپیکٹڈ ہو گیا تھا. پاگل ہونے پہ ہر ایک کے ذہن میں تصویر آتی ہے بہت خوفناک سی. آپ کو بی پی ہو جائے، سر درد ہو جائے، سب لوگوں کو قبول ہو جاتا ہے.
सो ये टैबू बना हुआ है। जिस तरीके से कुछ डिजीज़ को हम हर एक से शेयर कर सकते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनको नहीं शेयर किया जा सकता या किया जाता है। सेकंड, ये जो बात हमें 40-50 के बाद हमने सुननी शुरू की कि माइंड मैनेजमेंट भी कोई काम है, ये बात 9-10 साल के बच्चे को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो इस सारे मसाइल से जब गुजरे तो अपने आप को मैनेज कर सके। आई फुली एग्री कि तमाम तर खुशियों के बावजूद, तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो हमारे मुंह पे 12 बजे हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से बजे हुए हैं। ये ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक होने की तरफ जा सकती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोग नाबीना होने के बावजूद भी हंस रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, कुछ ना होने के बावजूद भी उमर शरीफ के लतीफ़ों पे हंस रहे होते हैं। दे स्पेंड अ वेरी गुड लाइफ अदर देन दैट के जिसके पास गाड़ी है, जहाज़ है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो सोचो में डूबा हुआ है, परेशान आ गए। सो जस्ट टू कंक्लूड, टैबू है और इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर ओपन बात होनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट होनी चाहिए बजाय हंसने की। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप कुछ कह रही थी शायद मैडम, आप कुछ कह रही थी उस टाइम शायद, जब मैंने कहा कि ये क्यों है, ये डर और ये सब हमारे अंदर कहाँ से आया है, आप कुछ कह रही थी शायद। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरी जहाँ तक बसीरत है वो ये है कि हमारे अल्लाह ने हम सबको नेमत दी है। अल्लाह में ना इंसाफी नहीं कर सकता। ये नहीं है कि जितनी क्वालिटी जिनको दी है या इनको दी है वो मुझे नहीं दी है। मतलब हमारा ये है कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो हमारे इस तरफ से बाहर होती हैं या वो हमारे लिए अल्लाह ने रखी ही नहीं होती। हम उन चीज़ों को लेकर अपने जहन को इतना परेशान कर लेते हैं, जो दी हुई चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रही होती। तो ये सारा हमारा जहन का खेल होता है कि जिस तरह से हम उसको वो लेकर जा रहे होते हैं, जो बात हम उसको दिखा रहे होते हैं वही देख रहा होता है। इसमें हमारे जहन का कसूर एक तरह से नहीं होता, क्योंकि वो हम उसको उस पैटर्न पे डालने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उसका पैटर्न होता ही नहीं। तो आप एक चीज़ को उस सांचे में डालने की कोशिश करें जो उस सांचे के लिए बनाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एक हर्डल फील करेंगे, आप एक स्ट्रेस फील करेंगे और आपको लगेगा कि समथिंग रॉन्ग। सब कुछ होने के बाद भी बावजूद आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं यार कुछ मिसिंग है, समथिंग या कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बजाय कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, वो चीज़ देखें जो आपके पास है, उससे आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और करने की शुक्रगुजारी में कितना आप उसके किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये सब आपसे थैंक यू सो मच। अच्छा, सर की बात पे वापस से आ रही हूँ। यहाँ पे आपने जो बात की, बचपन में आपके साथ हुआ, अगर चले मैं वॉलंटियर करती, मेरे साथ तो हुआ ही था, ठीक है ना। जब रो रहे हैं, ठीक है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, सुना होगा ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। हमारे तो बेड़ा गर्क वहीं से कर दिए जाते हैं कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। वहाँ से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हम अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते हैं, हमें रोना नहीं है। वहाँ ये मैसेज मिलता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम रोएंगे। नो खासतौर पर शादी के बाद वो तो आप इंटरनली रोएंगे ना, फिर भी वो रोना भी आप दिखा नहीं सकते हैं, वो रोना भी आप दिखा नहीं सकते हैं ना, आप इंटरनली रोएंगे ना, वो भी नॉट नेसेसरी। नो सर, आवाज़ बुलंद भी रोइए, दोस्तों के साथ रोएंगे, आवाज़ बुलंद भी रोइए, कौन रोकेगा आपने? दोस्तों के साथ मिलके। कोई रोकता नहीं है। चले यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी कोई साइकोलॉजिकल चीज शेयर कीजिए, आप करेंगे? हमें टोकी नफ्सियाती आप करेंगे? सर, ये तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आप बात को मजाक में टाल। नहीं नॉट करें आप। सर, आई नो, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। जी, मैं उससे भी ज्यादा उम्दा दूंगी, एकेडमिक दूंगी मैं। जी सर। सो सर, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, दिस इज समथिंग, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रियल और ऑथेंटिक होकर बैठे, क्योंकि हमने थोड़ी प्रूव कर रहे यहाँ पे कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ या दूसरों नहीं है स्ट्रांग। You and me, in my view, it's a society, nothing else. Sir, let me complete what I was saying. Okay, so ये चीज़ हमारे अंदर बचपन से आती है। रोना क्या है? रोना एक इमोशन है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हंसना है, हंसना और रोना दोनों इमोशंस हैं और दोनों इनेट इमोशंस हैं जो पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर आए, किसी ने खुद बिल्ड नहीं किए हैं, लेकिन रोने को सप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ से जो हमारा इमोशनल ब्रेन है उसको ये मैसेज मिल जाता है कि आपने इमोशंस का डिस्प्ले नहीं करना। Am I making sense? Yes.
राइट? तो यहाँ से हमें ये पैगाम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर घर में कोई मेहमान आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वहाँ जाकर मुंह बना कर नहीं बैठ जाना, बात करिए सबसे, स्माइल करना, स्माइल करके सलाम करना, वेरी गुड, सलाम करना बहुत अच्छी बात है, वो कौन सी बुरी बात है। लेकिन आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सलाम कर रहे हैं, आपकी फैमिली में ट्रेंड है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको पिकअप करेगा, बच्चा बिहेवियर को पिक करता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो अपब्रिंगिंग हमारे यहाँ हो रही होती है वो ये होती है कि जी हम तो हमारे खानदान में ये होता है तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं, वो उसको बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रख के अपब्रिंगिंग हो रही होती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर इमोशनली बहुत नम होता है। मर्दों की बात ले लीजिए, जैसे मर्दों को जो बच्चे छोटे होते हैं तो क्या कहा जाता है, नो बॉयज डोंट क्राई, व्हाई कांट बॉयज क्राई, लड़के या मर्द रो क्यों हमें तो अभी तक कहा जाता है। हाँ, तो कितना आप देखें कितना बड़ा जुल्म है ये एक जुल्म है बाकायदा तौर पे कि क्यों नहीं रो सकते। मतलब वो घुट घुट कर मर जाएगा, उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा स्ट्रेस से, लेकिन उसे रोना नहीं है क्योंकि उसने बताना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो स्ट्रेंथ तो ये है ही नहीं, स्ट्रेंथ ये है कि मैं अगर बात कर रही हूँ, बात करते करते इन बिटवीन मुझे कहीं रोना आ गया, मैं ओन करूँ कि हाँ ठीक है तो क्या, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी नीड टू ओन इट। जी सर। माशाल्लाह जो आपका तरीकाकार है ना कि ये जो डिस्कशन का है, आई लाइक वेरी मच कि आपने बड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाया है, एंड आई एम आल्सो टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस बेनिफिट। क्वेश्चन ये है कि वी फॉलो द वेस्ट, ये सही है ना, हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। सॉरी, हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। जी जी, जो भी मीडिया है वो भी हम वेस्ट से ज़्यादा इंस्पायर होकर करते हैं। वेस्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है जो फिनिशिंग स्कूल का है कि बच्चों को जो है ना शुरू से जो है ना वो ट्रेन किया जाता है कि आपने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, खाना कैसे खाना है, स्कूल में कैसे जाना है। तो व्हाट डू यू थिंक जो है ना कि ये जो फिलॉसफी है, ये जो प्रैक्टिस है, ये इट इज़ ओके, शैल वी फॉलो इट, या हम अपने तौर पे छोड़ दें बच्चों को कि यार इनकी मर्जी जो कुछ करना है वो करें और आगे जाके खुद ये सही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा, छोड़ना नहीं है, देखें हम जब बात कर रहे होते हैं ना, इसमें आपका या मेरा या किसी का भी कसूर नहीं है। हमें ये बात मिली ही इस तरह से है कि या तो छोड़ देना है और या पकड़ लेना है, मतलब कुछ ना करें प्लीज, बीच में रहें। मतलब आपको दबोचने की भी जरूरत नहीं बच्चे को, ना ही बिल्कुल छोड़ देने की। बच्चे को देखें एक आम मेंटालिटी पता है क्या जो मैं सेंस करती हूँ लोगों में, जैसे लोगों के यहाँ कोई बच्चा बच्ची पैदा हुआ तो उनके अंदर ना एक वो फीलिंग आती है कि जाहिर ये बात वो कहते नहीं है बट दे फील कि अब कोई एक इंसान ऐसा दुनिया में आ गया जिसको तो पूरा मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, इसकी जिंदगी तो मेरी मर्जी से गुजरेगी। ऐसा नहीं होता है, हम अपने बच्चों के साथी बने, जब भी रिस्पेक्ट भी होगी और वैल्यूज भी हम ट्रांसफर कर सकेंगे। बच्चा ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमारी रूटीन में होंगी, जो बिहेवियर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मदर हूँ तो जिस तरह से मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरे घर पे अगर कोई मेहमान आए उनके साथ मैं बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही हूँ और उनके जाने के बाद मैं उनकी मजाक उड़ा रही हूँ, उसके कपड़े कैसे पहने थे, उसकी शक्ल कैसी थी, वो कुछ खा कैसे रहा था। बच्चा अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा, उसको ये पता चल गया है कि लोगों की इज्जत नहीं की जाती है, बस मुंह पे की जाती है इज्जत, स्माइल की जाती है, पीछे तो हम उनके बखियों घेर देते हैं। मैंने बच्चों को सिखाया नहीं है कि तुम लोगों की बुराई करो, मैंने तो उसको समझा दिया कि तुमने करनी है अपने बिहेवियर से। तो जब हम ये बात करते हैं, जब जेनजी की भी बात होती है, नई जनरेशन की, ये तो ऐसी वो तो वैसी, तो हमने उनको सिखाया क्या है। अब इस जनरेशन के साथ क्या हो रहा है कि इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस करने के लिए जब पेरेंट्स के पास जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ जी एग्जैक्टली अच्छा बिल्कुल, आप पहले बच्चों की बात सुन लें। देखिए जब तक आप सुनेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने से किसी को क्वेश्चन किया, जब तक मैं सुनेंगी नहीं, आप अगर आधी बात करें हाँ ठीक है मैं बता रही हूँ, आपको कैसा लगेगा? कंप्लीट बात जब आप किसी की सुनते हैं ना, वो इंसान बहुत रिस्पेक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि मुझे सुना गया है, और ये इटसेल्फ एक जेन्युइन कनेक्शन बना देती है चीज़ किसी भी इंसान के साथ, इवन स्ट्रेंजर के साथ। जब आप रिस्पेक्ट के साथ किसी की बात सुनते हैं, हम बात ही नहीं सुनते, हम बात सुनने से पहले कह देते हैं कि
ये तो आज का बच्चा ना गलत ही होगा, कैसे पॉसिबल है? आपकी औलाद है, उसके साथी बने, अगर गलत है भी तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। और मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी एफिलिएटेड हूँ, जो ये जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बात करना चाहती है अपने चैलेंजेस पे, क्योंकि उनके चैलेंजेस हमारे चैलेंजेस से डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो हमारे चैलेंजेस भी लिमिटेड थे। अब के ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें बीच का रास्ता लेने की ज़रूरत है कि हम बात करें।